I welcome all the participants who have joined us today on this masterclass, which is on what business opportunities there for MSMEs on through GEM platform. And we have with us our expert speaker for today's masterclass, Ms. Akanksha Acharya. She is a senior consultant with MSME Business Forum India. Before I hand over the session to Ms. Acharya and request her to take you through the formal ins and out of GEM platform. I will take a little of your time to walk you through the profile of the organizers of this masterclass, which is Power to SME and Wadhwani Foundation. Power to SME, it was established in year 2012 by our founder and CEO, Mr. R. Narayan. He came up with a very innovative business model which eliminated intermediaries from the supply chain of raw materials from big manufacturers and then it pass it on to the small SME manufacturers on demand aggregation basis, and thus we transfer the price benefit to the MSME manufacturers. This is the entire Power to SME ecosystem. As I mentioned, Power to SME, it deals in raw material procurement and sourcing business. Our vertical finance me, it facilitated loans through our financial partners and in a very seamless and faster manner. Our portal SME shop is the biggest B2B marketplace for MRO and industrial goods, and our NPFC best funds, it is into very easy innovative solutions for raw material and working capital finance. The key product categories that Power to SME deals in include steel, polymer, paints, yarn, chemicals, and there are several others. The major industrial verticals that we cater to include auto components, electronics, engineering, agricultural tools, and there are more. With response to the market demand under COVID, we are vertical SME shops. It has come up with the entire range of COVID-19 essential products. So both enterprise and MSMEs can buy, sell, and procure COVID essential products through SME shops. We are the invested company. Some of the most reputed venture funds of the country have invested in us. Inventors, Kalari, Excel, Nandan Nilek, and strategic investors. We are also funded by World Bank through its financial arm, International Finance Corporation. This is the list of a few awards and accolades that we have won over the time. The worth mentioning here is Forbes India Leadership Award, which we won under Outstanding Startup category. This is our social media presence. So any one of you who is interested in knowing more about us can get in touch with us through any of these mediums. And the co-partner, the co-organizer of this masterclass is Wadhwani Foundation. And I would now request Aparajita Prasad from Wadhwani Foundation to kindly brief you about their new initiative by the name Sahayata. Over to you, Akanksha. Oh, sorry, Aparajita. Thanks, Umair. That was a nice beginning that you have flown for the masterclass. We at Wadhwani Foundation, we are really excited to be working closely with Power to SME. Wadhwani Foundation has been a philanthropic organization and it was founded in 2000 by Mr. Romesh Wadhwani. And the kind of things that we are doing is into the scalability of employability. That's where we help the MSME segment get into connected with the coaches, consultants, investors, and corporates to tide them over their burning needs. We provide them consulting services on a pro bono basis. So that's the way we help and support MSMEs. Uh, the areas that we support onto are into the customers, products, diversification, new value chain, expansion into different geographies, and the channels. These are some of the areas that we would help and support the MSMEs tide over their challenges that they are facing. The model that we work on is a very simple model, plug and play kind of a model. We would get in touch with you guys if you register on the link that is being shared during the webinars, and we would get in touch with you. We would understand your pain areas. We would then connect you with a relevant
consultant from across the pan India pool that we maintain, and they would help you tide over your issues. And in case you want to take that forward, you can even after the pro bono services are over, you can get in touch and get into a paid model. So that's in a nutshell the kind of model that we are working on. Sahayata has till now worked into more than, it's a 200 crore initiative by the foundation, and it has helped distressed SMEs affected by these pandemic situation that we have been facing all throughout, and more so in India and Latin. So we are really excited to help and support you guys. Feel free to register on the link that is being shared, and we would love to help you out. Thank you, Aprajita. And let me just give you a brief context about this masterclass. It is on GEM, and as we all know, hello, can you hear me now? Hello? Yes, you are audible. Okay. Okay. So GEM, which is for government e-marketplace, it aims to enhance transparency, efficiency, and speed in public procurement. It provides the tool of e-bidding, reverse e-auction, and demand aggregation to facilitate the government users achieve the best value for their money. And GEM has performed really well over the time. Around 1,55,714 micro and small enterprises, sellers, and service provider are currently there on GEM, and the entire volume of the order served by MSEs is around 57.52%, which is really a very big number. And GEM has eliminated multiple level of tedious verifications and decision making, leading to almost dramatic reduction in lead time in government procurement. And for MSMEs and independent suppliers, this has opened attractive new options by eliminating intermediaries and guaranteeing prompt online payments. In less than just 2 years, GEM has opened wider market access for MSMEs, helped and grow in a big way. To encourage and support MSMEs to join GEM, the government is seeking to ease credit availability for MSMEs through GEM, especially for the startups and the women and entrepreneur. GEM is now focusing on service sector in a very aggressive manner, such as transportation, inspection, webcasting, and analytics services. And the team of GEM is also in consultation with the several ministries, including the Ministry of Textiles, to pull data of around 21 lakh viewers and 18 lakh craftsmen for onboarding of the on the platform. So you can see GEM is giving an opportunity from the smallest to the medium level to the big businesses, and thus the challenges of MSMEs could be addressed in a very aggressive manner through GEM. And we have as our expert speaker, Ms. Akanksha Acharya. Just as I told you, she has over 10 years of experience with public procurement in India and in global market. She has been managing the government procurement information and the bidding mapping, and thus leading to many success stories. She has a vast experience of working with bidders in assisting them with bid submission, joint venture creation, government procurement registration, interacting with the government agencies, and many more. So I request all the participants, if you have any query or questions to be raised to the speaker, kindly submit your questions to the chat box, and we will take this questions to the speaker in Q&A session. So I now invite Ms. Akanksha Acharya to carry on the class forward. Over to Akanksha. Thank you, Zumail. Thank you so much for this introduction. And first of all, I welcome all the participants for this webinar. And I thank Vadhwani Foundation and Power to SME to give me this opportunity to reach to the MSMEs and the vendors directly.
As before I start on with my presentation, I would just like to brief something about me and how I have been working in the government sector for past not 10 years, but I can say more than 15 years. So I work for an organization called DG Market, and we are basically initiated by World Bank in the year 2001. So we are an offshoot of World Bank, and we are privileged to get the direct informations for the tenders published under the projects funded by World Bank, United Nations, European Union. The list is ongoing. MCC, Millennium Challenge Corporation, International Agency for France Development, ISDB. So the list is ongoing because it has been initiated by World Bank, and we have a database of more than 5 million suppliers registered with us. So basically, these agencies, they come to us because they know that they are going to get more suppliers. And I have been dealing with the government authorities directly in India as well as in the international market. And we have many government agencies, around more than 4,500 ministries and the agencies who are using DigiMarket platform for processing the tenders, because our USP is like we don't only give the information, we also handhold the bidders, because that is very much needed. वो बहुत जरूरी है आज के इसमें के information तो open है, information आप कहीं से भी ले सकते हो, but आपको उस नए मॉड्यूल में एंटर करना, how you have to enter into the government bidding, and basically for MSMEs, so they need the guidance. So that is where we have a strong hand holding for these MSMEs. For saying this, I'll just share my screen, and I'll just start with my presentation. Just let me know if you are able to see my screen, all of you. So Yes, it's visible. perfect, thank you. Okay. So my presentation itself shows that you can see that we have partnered with MSME Business Forum. So MSME Business Forum is an umbrella under which DG Market is servicing MSMEs. So we are helping MSMEs to bid, those MSMEs who have never done government contracting. See, the big companies, they have a team in place for doing government bidding. They have the experience, and that is the reason they take away the contracts. But these MSMEs, if we are, government is initiating so many things for MSMEs, but if we are not helping them, then it's not possible for MSMEs to get into this market, into this government area of tendering. So that is where we are collaboratively working for the MSMEs. Before I get into the GEM thing, I will just quickly go through some stats and some, what exactly the government is doing for the MSMEs. As you all must be knowing, because there was a news out during the pandemic that government has restricted the international companies to participate in the bids, which are of 200 crores. So आप देख सकते हो कि 200 करोड़ तक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके लिए इंटरनेशनल कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. तो अल्टीमेटली इट ओपन्स अप अ मार्केट फॉर द इंडियन कंपनीज एंड फॉर द MSMEs as well. This will be a step forward self-reliant India and support made in India by supporting MSMEs. MSMEs payment receivables, जैसे जुमेर ने भी कहा कि गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है, बिकॉज ज्यादातर क्या होता है कि MSMEs पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको पता रहता है कि गवर्नमेंट से हमको पैसा जल्दी नहीं मिलेगा, एंड दे आर नॉट इन दैट पोजीशन टू ब्लॉक देयर कैपिटल एंड देयर एनर्जी एंड देयर एफर्ट्स. बट अब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट या PSUs, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है जो MSME से प्रोक्योरमेंट करती है चीजें, 45 डेज के अंदर उनको पेमेंट क्लियर करना ही है. अगर वो नहीं करते हैं तो उनको एडिशनल पेमेंट करना पड़ता है टू दीज बिडर्स. प्राइम मिनिस्टर का हमारा ऑलरेडी एक स्लोगन है दैट वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल. कुछ MSME facts quickly we'll go through this. Total number of MSMEs इंडिया में 6.33 crores है, and around 11 crores लोगों को ये employment भी provide करते हैं. So they don't only contribute to the economy of the country, but they also generate the opportunities, the job opportunities for the youngsters and for the citizens of the country. It accounts for 45% of total industrial production, 40% of total exports, and contributes very significantly to GDP. Manufacturing segment within the MSME contributes 7.9% of GDP, and MSMEs also contribute 30.50% services.
So the total contribution in GDP is around 29%. अब MSME का रोल क्या है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में? अब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स तो की है, बट एमएसएमईज को जो ऑलरेडी मार्केट में जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने टेंडर्स जीते हुए हैं, उनसे compete करने के लिए कहीं ना कहीं एमएसएमईज को एक फैसिलिटी देना बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेट किया है कि जितना भी प्रोक्योरमेंट होता है पूरे साल में, so out of this procurement, 25% of the procurement is needed to be done through the MSME companies. तो हर एक अथॉरिटी जो भी प्रोक्योरमेंट करती है उसमें 25% उनका जो प्रोक्योरमेंट है वो एमएसएमई कंपनीज के थ्रू होना चाहिए। अगेन इसमें और एक चीज उन्होंने की है कि जो छोटी एससी और एसटी एंटरप्राइजेज है, पॉसिबिलिटी है कि ये शायद नहीं जीत पाए बिकॉज दूसरी एमएसएमई अपॉर्चुनिटी लेके जाए, तो उनके लिए भी प्रोविजन किया हुआ है दैट दे 44% out of 25% need to be procured from scheduled caste and ST enterprises. And women entrepreneurs के लिए भी प्रोविजन है 3% out of the 25% जो है वो women entrepreneurs से प्रोक्योर किया जाता है। So ये सारे मैंडेट बनाए हैं गवर्नमेंट ने सारे मिनिस्ट्रीज एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो ये कंपलसरी इनको उतना प्रोक्योर करना ही पड़ता है। दूसरी चीज, टेंडर्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एग्जेम्प्ट फॉर पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी। टेंडर में बिड करना मतलब आपका बहुत सारा कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाता है बिकॉज टेंडर फी भरना है, ईएमडी भरना है, बट जेम के थ्रू जो भी प्रोक्योरमेंट होती है उसमें सारे एमएसएमईज को टेंडर फी और ईएमडी एग्जेम्प्ट है, उनको ईएमडी भरने की जरूरत नहीं है, दे नीड नॉट हैव टू पे द ईएमडी एंड टेंडर फी एट ऑल. So here it is like, initially you are not paying anything and you are getting an opportunity to participate in government tenders. Again, government has restricted the imports of many products from countries like China, Pakistan, which has obviously created the opportunity for MSMEs to supply those products. Because बहुत सी चीजें दूसरे कंट्रीज से जो इंपोर्ट होती थी वो गवर्नमेंट ने अभी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर दी है। उसके साथ में टेंडर में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी वजह से एमएसएमईज बैकआउट करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. दैट इज एवरी टेंडर हैज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल, अगर टेंडर में दिया है कि आपको लास्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट एंटिटी में या कोई भी प्राइवेट एंटिटी में आपने ये प्रोडक्ट सप्लाई किया होना चाहिए, आपका टर्नओवर पर्टिकुलर अमाउंट का होना चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू एमएसएमई एंड जेम, तो गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको जो भी टेंडर एमएसएमई के लिए आपने फ्लोट किया हुआ है उसके लिए आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा ईज करना है. तो जैसे अगर आप स्टार्टअप हो, आप स्टार्टअप कंपनी हो, अगर आपने स्टार्टअप सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपका जो एक्सपीरियंस मांगा है टेंडर में वो वेव ऑफ हो जाता है. So these are various ways in which the government is promoting and asking these MSMEs to go for the government tendering. Now benefits to MSMEs. GEM का benefit क्या है basically? So GEM is basically a government e-marketplace और currently 26% of MSMEs registered है और day by day ये number बढ़ रहा है. बिकॉज जैसे जैसे गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स ला रही है तो एमएसएमईज को पता है कि हमको जेम में रजिस्टर करना है एंड दैट इज वेयर दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. रजिस्टरिंग विद जेम एलिमिनेट द इंटरमीडियरीज इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट. तो पहले सारी चीजें ऑफलाइन थी, तो ऑफलाइन में एक प्रॉब्लम था कि मैनिपुलेशन बहुत होता था टेंडरिंग में, बट यहाँ पे सारी चीजें ऑनलाइन है. तो एक चीज है कि जब तक वो बिड क्लोज नहीं होता है सबमिशन दिन, बायर को ये पता भी नहीं रहता है कि किसने बिड सबमिट किया है, उनको सिर्फ यही पता रहता है कि 5 बिडर्स ने हमारा बिड सबमिट किया. तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि टोटली मतलब मैनिपुलेट करने नहीं हो सकता, बट 99% मैनिपुलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन. Government procurement is done through GEM and MSME registration gives them a wider market reach. इसको मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगी. बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एमएसएमईज इज टेंडर, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, टेंडर सेट फ्री ऑफ कॉस्ट, परचेस प्रेफरेंस फॉर मिनिमम 25% फॉर एमएसएमईज एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम ईएमडी एंड 358 आइटम्स ऐसे हैं जेम में जो सिर्फ रिजर्व किए हुए एमएसएमईज के लिए. तो वो प्रोडक्ट अगर कोई बायर प्रोक्योर करता है तो वो प्रोडक्ट उसको कंपलसरी एमएसएमई से ही बाय करना है, वो किसी और कंपनी से बाय नहीं कर सकता है. यहाँ पे कुछ लिंक्स मैंने दिए हैं, जैसे फर्स्ट आप देख सकते हो, जेम इज द सेंट्रलाइज पोर्टल मैं बोल सकती हूँ बिकॉज
जेम एक ऐसा पोर्टल है जहां पे कोई स्टेट का इंफॉर्मेशन नहीं है बट पैन इंडिया का इंफॉर्मेशन है। तो आप जब जेम में रजिस्टर होते हैं तो इनडायरेक्टली आपकी मार्केटिंग होती है पूरे पैन इंडिया में। उसके अलावा स्टेट वाइज वेबसाइट्स भी अवेलेबल है गवर्नमेंट की, जहां से ऑनलाइन टेंडरिंग होता है। नाउ वी विल गेट इनटू द जेम एग्जैक्टली, जिसके लिए ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ के जेम में कैसे बिडिंग होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सॉरी या तो फिर क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है आपको, मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड दे देती हूँ आपको। जेम वाज बेसिकली इनिशिएटेड इन द ईयर 2016। सो 2016 में इसको स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इन ऑगस्ट, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट समवेयर दिस वाज लॉन्च्ड। एंड इसके 3 वर्जन आ चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट वर्जन था 2.0, देन देयर वाज 3.0 और रिसेंटली अप्रैल में इन्होंने वर्जन लॉन्च किया है, दैट इज 4.0। So basically version is like they are improvising their process. So जो भी shortfalls पहले version में थे उसको उन्होंने improvise किया, and we know that soon there is going to be a 5.0 version also. So this is about the GEM, and and GEM के बारे में आप देख सकते हो like e-market that facilitates online procurement. तो यहाँ पे ज्यादा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जेम में रजिस्टर्ड है वो सारे जेम के थ्रू ही प्रोक्योर होते हैं। इसमें मैं एक बात मेंशन करूंगी कि करंटली सर्विसेज के लिए इसमें स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ सर्विसेज लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या तो फिर कंसल्टेंसी है कुछ टाइप की, उसके टेंडर्स अवेलेबल है, बट दिस इज currently it is more focused on the goods, but soon they are going to start with the services section also on a very larger scale. जुमेर ने भी कुछ फैक्ट्स बताए थे, सेम फैक्ट्स है लाइक यहाँ पे अराउंड 1 करोड़ ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्टेड हुए हैं, 46,000 अप्रोक्सीमेटली बायर्स, मतलब जो गवर्नमेंट एंटिटीज है वो रजिस्टर्ड है यहाँ पे, 62 करोड़ के ट्रांजैक्शन ऑर्डर्स के वैल्यू यहाँ पे हुए हैं, एंड यहाँ पे अराउंड 5 लाख ऑफ सेलर्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो है वो रजिस्टर्ड है जेम में। बेनिफिट्स जैसे मैंने पहले भी कहा कि ड्राइव बिजनेस विथ ईज। एक सिंपल एग्जांपल मैं दूंगी दैट इफ योर कंपनी इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ओके, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर डूइंग अ बिजनेस इन दिल्ली और कर्नाटका और एनी अदर स्टेट, it is not that easy, because first of all finding the opportunity, going there, finding out the details, supplying there, so many other things are associated with that. But through GEM this has become easy because you need not have to go anywhere. आपने अपना प्रोडक्ट जेम पे डाला है, आपका प्रोडक्ट जो है वो जितने भी बायर्स है हर एक स्टेट के वो एक्सेस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, आप किस प्राइस में ऑफर कर रहे हो। तो इट इज लाइक जैसे सेकेंड पॉइंट है कि पैन इंडिया रीच, आपका जो मार्केटिंग बजट है वो टोटली जीरो हो जाता है, बिकॉज आपको कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपने अपना प्रोडक्ट डाला है, डायरेक्टली आपका मार्केटिंग हो जाता है पैन इंडिया में विदाउट पुटिंग अप अ सिंगल पेनी। तो इस तरह से आप पूरे पैन इंडिया में आपका प्रोडक्ट जो है वो सर्कुलेट हो जाता है विद इन ऑल दी टाइप ऑफ बायर्स, दी गवर्नमेंट एंटिटीज। ट्रांसपेरेंसी जैसे मैंने कहा कि पहले मैनिपुलेट करने के चांसेस ज्यादा थे, अभी यहाँ पे बहुत कम है। डायरेक्ट एक्सेस टू लार्ज बायर्स एंड डायनामिक प्राइसेस। अब किस टाइप के, नाउ वी विल गेट इनटू स्लोली स्टडीली इनटू जेम पोर्टल के जेम पोर्टल क्या है, कौन रजिस्टर कर सकता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के सेलर्स रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो है OEM, वन इज द OEM हु इज द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो खुद मैन्युफैक्चरर है, अनदर इज रीसेलर एंड थर्ड इज सर्विस प्रोवाइडर। रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, सबके कॉमन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे पैन डिटेल्स है, अगर आप आधार के थ्रू रजिस्टर कर रहे हो तो आपका आधार कार्ड लगता है, CIN नंबर है, GST नंबर है। बट फॉर OEM आपको ट्रेडमार्क प्रूफ अपलोड करना पड़ता है। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सिर्फ एप्लीकेशन बेसिस पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू सी दैट ओके आई हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द ट्रेडमार्क, यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर इट and on the basis of the application number you can get your registration done in GEM. So that is the advantage over here. For resellers they need to have a authorization code from OEM. Resellers को ये एक additional document की जरूरत पड़ती है, authorization from the OEM that they are reselling their product. And for service provider the information is same as that of other sellers. Prerequisite for seller registration. जेम में 2 टाइप के रजिस्ट्रेशंस है, प्राइमरी यूजर एंड सेकेंडरी यूजर।
तो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करती हूँ कि प्राइमरी यूजर और सेकेंडरी यूजर क्या होता है। प्राइमरी यूजर इज बेसिकली द साइनिंग अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। तो जो अकाउंट बनता है वो डायरेक्टर के नाम पे या तो की पर्सन है कंपनी का उसके नाम पे, जिसका आईटीआर सिग्नेटरी है, जो जिसका पैन रजिस्टर्ड है, तो उसके नाम पे प्राइमरी यूजर बनता है। अब ये सेकेंडरी यूजर का फैसिलिटी किस लिए दिया गया है कि जरूरी नहीं है, प्राइमरी यूजर तो है डायरेक्टर, अब वो तो बिडिंग नहीं करने वाले, वो तो सारी चीजें मैनेज नहीं कर, बिकॉज ये पूरा एंड टू एंड है। जैसे ऑर्डर भी आपको जेम के थ्रू ही प्लेस होता है, इनवॉइस भी आपको जेम में रेस करना है, आपका पेमेंट भी जेम में आपके बैंक अकाउंट डिटेल में आता है, तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो डायरेक्टर वो चीजें नहीं करने वाले। तो जो प्राइमरी यूजर है वो अपने अंडर अलग अलग यूजर अकाउंट बना सकते हैं। तो जैसे एक यूजर को उन्होंने असाइन किया कि ये बंदा बिडिंग का काम देख लेगा, पूरा जो भी टेंडर्स आते हैं उसका रिक्वायरमेंट देखना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट रेडी करना है, प्राइस ऑफर करना है और बिड सबमिट करना है। दूसरा बंदा रहेगा वो टेक केयर करेगा टू प्लेस दी, अगर ऑर्डर आए हैं तो वो ऑर्डर कंप्लीट करना। तीसरा जो यूजर रहेगा दैट यूजर विल टेक केयर ऑफ क्लियरिंग ऑफ द इनवॉइसेस एंड ऑल। So this is the facility given wherein the primary user can create secondary user. Now I'll just give you some documents which are the standard document required for the primary user and the secondary user for registering in GeM. It's obvious like Aadhaar number, virtual ID, PAN of the user, mobile number linked with Aadhaar. If you are registering through your PAN card details, not through Aadhaar, then mobile number in case of PAN. Active email ID, document as per constitution type. Like if it is a private entity, then CIN number लगेगा, PAN है and GST number है. So you have to have all the standard documents which are needed to be uploaded while registering your company. Your address details need to be as per the ITR registration में जो आपका एड्रेस है वो होना चाहिए. बैंक अकाउंट डिटेल्स में यू कैन रजिस्टर द मल्टीपल अकाउंट्स, एक ही अकाउंट नहीं, आप 2-3 अकाउंट्स भी बैंक अकाउंट डिटेल्स रजिस्टर कर सकते हो. दिस इज फॉर द प्राइमरी यूजर. For secondary user, it is just Aadhaar number, mobile number linked with Aadhaar and active email ID. Now there are few things which needed to be taken into consideration before we go for registration. जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्राइमरी यूजर है वो ऑथराइज पर्सन ही होना चाहिए, आइदर द डायरेक्टर, की पर्सन और द आईटीआर सिग्नेटरी. प्राइमरी सेलर कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर अकाउंट, तो सेकेंडरी यूजर क्रिएट नहीं कर सकता है. द अथॉरिटी इज गिवन ओनली टू द प्राइमरी यूजर कि वो अपने अंडर 3, 4, 5 जितने भी सेकेंडरी यूजर बनाने हैं वो बना सकता है एज पर द रूल्स. फॉर एमएसएमई उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर की जरूरत रहती है. फॉर एमएसएमई वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहता है एंड आधार मोबाइल नंबर लिंक्ड विद द सेम इज रिक्वायर्ड. DIPP, that is Department of Industrial Policy and Promotion number and mobile number is required which is validated online. तो इनका ये जो सिस्टम है ये डायरेक्टली यूएएम से लिंक्ड है. तो जैसे ही आप आपका यूएएम नंबर डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है. सो इट इज नथिंग डन मैन्युअली एज सच. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन प्रोसेस. इंट्रोडक्शन प्रोसेस में आपको 2-3 चीजें पूछी जाती है, लाइक ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका आधार नंबर, अगर आप पैन के थ्रू कर रहे हो तो आपका पैन डिटेल्स एंड आपका फोन नंबर एंड सबमिट करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आता है आपकी ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी आपने इनिशियली डाला हुआ है रजिस्ट्रेशन के टाइम. Once you get that email, you have to click on that email and you have to verify your email ID. After you verify your email ID, you have to log into GeM website and then you have to further process your profile and you have to add other details. जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, MSME का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो सारे प्रोफाइल बनाना. Once your profile is 100% complete, एक बार आपका प्रोफाइल 100% complete हो जाता है, उसके बाद लास्ट स्टेज आता है प्रोडक्ट कैटलॉगिंग. प्रोडक्ट कैटलॉगिंग के बाद, प्रोडक्ट कैटलॉगिंग अप्रूव होने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है, एक्टिव होता है जेम पर. प्रोफाइल बिल्डिंग में 4 चीजें हैं जेम में, दैट इज माय कंपनी, पर्सनल सेटिंग्स, माय एक्शंस एंड माय टीम. जैसे ही आप लॉग इन करते हो तो सबसे पहले ये लिस्ट आपको पूछता है. तो आपको क्या करना है, पहले पैन वैलिडेशन में जाके आपका पैन नंबर और आपका नाम डालोगे एंड देन वैलिडेट, तो वो पैन वैलिडेशन हो जाता है. देन CIN वैलिडेशन करना है. जैसे आप पैन वैलिडेशन करते हो वो टिक करता है, बताता है कि ओके दिस इज डन, और वहां पे आपको टॉप पे स्टैट्स बताता है कि इसका 10% कंप्लीट हुआ है रजिस्ट्रेशन, 50% कंप्लीट हुआ है. तो जब आप पूरा कंप्लीट करते हो तब वहां पे 100% रजिस्ट्रेशन कंप्लीट बताता है. CIN वैलिडेशन, ऑफिस लोकेशन, बैंक अकाउंट, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक नहीं 2-3 बैंक अकाउंट्स भी डाल सकते हैं.
MSc सर्टिफिकेट है, अगर स्टार्टअप है तो स्टार्टअप सर्टिफिकेट है, टैक्स असेसमेंट है। टैक्स असेसमेंट जो करना पड़ता है, दैट हैज टू बी डन बिफोर यू गो फर्दर। जब तक आप टैक्स असेसमेंट नहीं करोगे, आपको आगे वो सिस्टम नहीं लेके जाएगा। टैक्स असेसमेंट के इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 days टू गेट इट वेरीफाइड। तो जैसे ही आप ये इनिशियल लेवल की चीजें इंफॉर्मेशन डालते हो, आप टैक्स असेसमेंट में ITR की डिटेल्स डाल दीजिए, एंड देन यू हैव टू वेट टिल दैट असेसमेंट इज कंप्लीट। तो यू गेट अ ईमेल कि आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ है, वो एक्टिव हो जाता है आपके लॉगिन में। उसके बाद आप की पर्सन वैलिडेशन डालते हो, DOE ऑर्डर कंप्लायंसेस डालते हो। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद, जैसे टैक्स असेसमेंट भी आपका कंप्लीट हुआ, बाकी चीजें आपने डाली, देन नेक्स्ट स्टेप इज माय एक्शंस में जाना है। माय एक्शंस में आपको डालना है डायरेक्टर्स इंफॉर्मेशन, वेंडर असेसमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्पेसिफिकली फॉर OEM। तो जितने भी OEMs हैं उनको वेंडर असेसमेंट कंपलसरी है। सॉरी। तो वेंडर असेसमेंट में आपको प्रोडक्ट डिटेल्स डालना रहता है, और साथ में आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट जो है, एप्लीकेशन है, उसको अपलोड करना रहता है। जेम ने कुछ एजेंसीज असाइन की है जो वेंडर असेसमेंट का काम करती है। जैसे ही आप अपना डिटेल डालते हो, ओके, यहाँ पे दो चीजें, आप वेंडर असेसमेंट के लिए जा सकते हो या आप वेंडर एग्जेम्प्ट के लिए भी जा सकते हो। अगर आपको वेंडर एग्जाम के लिए जाना है तो आपको NSIC में रजिस्टर करना पड़ता है। तो NSIC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वेंडर एग्जाम के लिए भी जा सकते हो, तो उसमें फिर आपको वेंडर असेसमेंट की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर वेंडर असेसमेंट, देन यू हैव टू फिल इन द प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है मंथली, एंड द ट्रेडमार्क। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको एक पेमेंट करना पड़ता है वहां पे। So vendor assessment का around 13,600 का payment है. This is the only payment which you have to pay in GEM. But that is only if you are going for vendor assessment. अगर आप vendor assessment के लिए नहीं जाते हो तो कोई payment नहीं है इसमें. So as such GEM is absolutely free. There is no registration fee as such. But if you are going for vendor assessment, then there is some amount to be paid. जैसे ही आप ये पेमेंट करते हो तो एक ईमेल आपको एक वहां पे एजेंसी असाइन हो जाती है। आपके ही डैशबोर्ड में आपको दिखता है कि ये एजेंसी असाइन हुई है आपके लिए। वो एजेंसी फिर आपको ईमेल करती है। इसमें दो टाइप का असेसमेंट होता है, एक है डेस्कटॉप असेसमेंट एंड एक वीडियो असेसमेंट। अब सिंस ये कोविड चल रहा है तो यहाँ पे वीडियो असेसमेंट हो रहा है, अदरवाइज कोविड के पहले पर्सनल विजिट होता था। तो दो तरह के असेसमेंट किए जाते हैं। एक तो आपको एक लिंक भेजा जाता है ईमेल में, जहां पे बोलते हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। वहां पे लिस्ट किया रहता है डॉक्यूमेंट, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, नॉट वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, लेकिन पैन है, वापस वो लोग आपके पास से डिटेल्स मांगते हैं। एक बार वो होने के बाद वो एजेंसी वेरीफाई करती है। उसके बाद पहले क्या करते थे कि वो आपको विजिट करते थे पर्सनल, टू वेरीफाई वेदर आपने सारी चीजें जो बताई है वो जेन्युइन है कि नहीं। बट कोविड में उन्होंने क्या किया है कि वो वीडियो असेसमेंट करते हैं। तो एक वीडियो कॉल के थ्रू पूरा आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर असेस करना है, डॉक्यूमेंट असेस करना है, तो वीडियो कॉल के थ्रू वो असेसमेंट होता है। और वो आपको पर्टिकुलर डेट दिया जाता है कि इस डेट पे हम आपका वीडियो असेसमेंट करेंगे। इस प्रोसेस को अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिन लगता है। तो एक समझ लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा जेम का। मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू 1 month, बिकॉज कोविड के सिचुएशन में वहां पे भी स्टाफिंग काफी कम है। आई नो बिकॉज आई हैव जेम टीम वर्किंग फॉर DG Market ऑल्सो, सो आई नो हाउ एग्जैक्टली द सिस्टम वर्क्स। सो एक महीना मैक्सिमम लगता है, मैक्सिमम आई एम टेलिंग, आपका टैक्स असेसमेंट एंड वेंडर असेसमेंट कंप्लीट होने के लिए। एक बार आपका वेंडर असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, आपका OEM पैनल बन जाता है, देन यू आर डन। तो आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अब आपका बचा है दैट इज प्रोडक्ट कैटलॉगिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेंडर असेसमेंट होने के बाद आप अगर आप OEM और रीसेलर दोनों हो तो वेंडर असेसमेंट के टाइम पे या वेंडर एग्जाम के टाइम पे वहां पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, वेदर यू आर OEM ओनली OEM और वेदर यू आर OEM एंड रीसेलर बोथ। तो अकॉर्डिंगली अगर आप OEM रीसेलर हो तो फिर आपको रीसेलर पैनल भी आपका बिल्ड करना है, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे आपकी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। उसके बाद सेलर प्रोफाइल आप बनाना है, चेंज, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, देन यू कैन डू इट इन पर्सनल सेटिंग। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है टू क्रिएट अ टीम। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर हम जाते हैं कैटलॉगिंग के लिए। कैटलॉगिंग में बेसिकली क्या रहता है कि वो कुछ चीजें पूछते हैं। जैसे सबसे पहले कैटलॉगिंग में आपके प्रोडक्ट का कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे अभी रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस वन एग्जांपल, बिकॉज हम रिसेंटली बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं जेम पे। तो उस कंपनी का प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने जो कैटेगरी थी वो गलत सिलेक्ट कर दी। अब कैटेगरी गलत सिलेक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि उनको वो टेंडर्स दिख ही नहीं रहे उनके अकाउंट में जो उनके लिए पब्लिश हुए हैं जेम में। तो जेम का सिस्टम कैसे काम करता है कि जो कैटेगरी में आप रजिस्टर्ड हो उसी कैटेगरी के टेंडर्स आपको दिखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है टू मेक श्योर कि आप कैटेगरी सही से सिलेक्ट करो जब आप कैटलॉगिंग करते हो। कैटेगरी इज बेसिकली द सेक्टर, लाइक जैसे मेडिकल इक्विपमेंट है तो मेडिकल इक्विपमेंट में फिर नीचे दूसरी चीजें रहती है, या तो फिर मेडिकल टेक्सटाइल है तो मेडिकल टेक्सटाइल में आपका पीपीए किट आएगा, या तो फिर हैंड ग्लव्स है, या बाकी सारी चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। कैटलॉगिंग में बेसिकली बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती। एक बार आपने कैटेगरी सिलेक्ट किया तो वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन रहती है। स्पेसिफिकेशन मतलब अगर आप कंप्यूटर सप्लाई करते हो तो फिर एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस वहां पे रहती है कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितने रैम का, ये हार्ड डिस्क कितने जीबी का है, या तो फिर रैम कितने जीबी का है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी रहती है। उसके बाद जैसे ही आप ये डिटेल डाल के सबमिट करते हो, देन उसके अप्रूवल के लिए भी आपको रुकना है। सो इट माइट टेक 1 or 2 days, समटाइम्स इट माइट हैपन इन अ डे आल्सो, बिकॉज उसके लिए एक टीम बैठी हुई है जो ये कंफर्म करती है। अगर आपका प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं है जेम में, आप देखते हो कि आपका प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं है, तो करंटली एक ऑप्शन है यहाँ पे जेम में, टिकट रेस आप कर सकते हो। आप आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि आप इस प्रोडक्ट को सप्लाई करते हो, एंड जेम को वो कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आप बोल सकते हो। बट ये लॉन्ग प्रोसेस है और ये प्रोसेस को टाइम लगता है, बट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बिकॉज इसके लिए एक टीम बैठी है और वो टीम पहले वेरीफाई करती है कि ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे आने वाली है, किस बायर को ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। 3-4 लेवल से उसको वेरीफाई होने के बाद फिर वो कैटेगरी ऐड होती है जेम में। तो वहां पे एक टिकट रेस करने का ऑप्शन है जेम में, जहां से आप टिकट रेस कर सकते हो, या तो फिर हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी है, वहां पे भी आप ईमेल करो तो वो रिवर्ट करते हैं, एंड दे हैव अ 24/7 सपोर्ट सर्विसेज आल्सो। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोडक्ट कैटलॉगिंग, जैसे जितने भी 5-6 प्रोडक्ट्स आपके हैं, आपने सारे प्रोडक्ट्स की कैटलॉगिंग बना दी है, उसके बाद वो वेरीफाई जब हो जाता है, तब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिव हो जाता है जेम पे। सो दैट मीन्स नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन एंड नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग द टेंडर्स इन योर अकाउंट। ठीक है। अब हम ये देखते हैं थोड़ा कि किस टाइप की बिडिंग होती है, किस टाइप का प्रोक्योरमेंट होता है जेम में। तो आप देखते हो कि प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विसेज के लिए मेरे स्क्रीन पे मैंने बताया है कि L1 परचेस होता है, इंटेंट बिड पार्टिसिपेशन है, डायरेक्ट परचेस है, बंच बिड पार्टिसिपेशन है, बिड टू RA पार्टिसिपेशन। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। L1 परचेस, ओके, सो मैं पहले डायरेक्ट परचेस पे जाती हूँ। जैसे आप रजिस्टर्ड हो जेम में, ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट डाला हुआ है। अगर कोई भी बायर को कोई प्रोडक्ट बाय करना है जिसका वैल्यू 25,000 का है, तो वो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकता है और डायरेक्टली आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो बायर क्या करेगा कि सेलर्स का रेटिंग देखेगा कि कौन से सेलर का रेटिंग अच्छा है, कौन से सेलर ने सही से प्राइस ऑफर किया हुआ है, और 25,000 के वैल्यू का उसका प्रोडक्ट है, तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेगा एंड आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट परचेस। इसमें टेंडर नहीं निकाला जाएगा। उसके बाद L1 परचेस। अब L1 परचेस में भी एज सच टेंडर नहीं निकाला जाएगा, बट L1 परचेस का जो अमाउंट है दैट इज 25,000 to 5 लाख। तो जितना भी प्रोक्योरमेंट विद इन दिस अमाउंट आता है जेम में, जो आता है प्रोक्योरमेंट, उसके लिए बायर क्या करेगा कि जितने भी सप्लायर्स है, OEMs है, उसमें से 3 OEMs को लिस्ट करेगा जिनके पास से इसको प्रोक्योर करना है, एंड देन जेम रिकमेंड करेगा कि इस सप्लायर से मुझे प्रोक्योर करना है बिकॉज ये लोवेस्ट प्राइस दे रहा है। एक चीज समझिए कि जेम में अगर आपको बिडिंग करना है, अगर आपको जीतना है, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर श्योर जरूरी है, बट प्राइस इज अ मेजर फैक्टर। यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस को ही प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। उसके बाद इंटेंट बिड पार्टिसिपेशन। इंटेंट बिड पार्टिसिपेशन बेसिकली उस प्रोडक्ट के लिए है जहां पे जेम में सिर्फ एक ही सप्लायर है उस प्रोडक्ट का, सो देयर इज नो कंपटीशन एज सच। ओके, एंड अगर उस प्रोडक्ट की जरूरत बायर को पड़ती है तो वो डायरेक्टली उसी सप्लायर को देगा, बिकॉज दूसरा कोई सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए। ओके, सो दैट इज द इंटेंट बिड। बंच बिड पार्टिसिपेशन इज बेसिकली कि एक ही टेंडर में बहुत सारी रिक्वायरमेंट की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं कि कंप्यूटर्स,
कंप्यूटर्स एक टेंडर में डाला हुआ है कि कंप्यूटर्स की जरूरत है, कंप्यूटर्स के साथ में यूएसबी भी चाहिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी चाहिए, माउस भी चाहिए, कीपैड्स भी चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड बंच. तो बंच बिडिंग भी यहाँ पे होती है. उसके साथ बिड एंड आरए पार्टिसिपेशन. बिड इज सिंपल, जैसे टेंडर आउट होता है उसका सबमिशन डेडलाइन रहता है, सप्लायर्स जो है वो उस टेंडर को देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं एंड वो पार्टिसिपेट करते हैं. एंड रिवर्स ऑक्शन में सप्लायर जो है वो लोएस्ट टू लोएस्ट प्राइस ऑफर करता है, दैट इज रिवर्स ऑक्शन. सेम गोज विद सर्विसेज. सर्विसेज में भी डायरेक्ट परचेसिंग होती है, L1 परचेस होती है एंड बंच बिड पार्टिसिपेशन होता है. तो ये डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट में. अब मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगी कि डायरेक्ट ऑर्डर्स एंड L1 ऑर्डर्स कैसे टेक केयर होता है. जैसे मैंने कहा कि सिंपल है, अगर बायर को 25,000 की वैल्यू का प्रोडक्ट लेना है तो वो सप्लायर सिलेक्ट करता है एज पर द रेटिंग्स क्राइटेरिया जो भी उसको चाहिए एंड वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करता है. L1 के लिए 3 OEM सेलर सिलेक्ट किए जाते हैं और लोएस्ट ऑफर को वो ऑर्डर दिया जाता है. अब एक चीज इसमें देखने जैसी है कि ये जो ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, you get 5 days to accept these orders. Within that 5 days, you can reject the order, maybe because of any reason, like you do not have a stock in place or any other reason, or you are not in a condition to supply, because of some strike or something like that. So you can reject the order. So within those 5 days, उस 5 दिन में आपको 3 बार वो ऑर्डर बायर प्लेस करता है और तीनों बार आप रिजेक्ट कर सकते हो. अगर 5 दिन के और एक्सेप्ट भी कर सकते हो. अगर 5 दिन के अंदर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, देन ऑटोमेटिकली योर ऑर्डर गेट्स कैंसिल. बट एक चीज है, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगी सेलर्स को कि ऑर्डर्स रिजेक्ट नहीं करें, बिकॉज आपके रेटिंग पे इफेक्ट होता है. जेम जो है वो हर एक सेलर को रेटिंग्स देता है, इवन बायर्स को भी देता है. तो सेलर्स को रेटिंग किस बेसिस पे दिया जाता है? लाइक इफ बायर हैज प्लेस्ड अ ऑर्डर एंड इफ द सेलर हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द डिलीवरी, सक्सेसफुली the product was up to the mark, then automatically GEM gives the rating, or the buyer also gives the rating that this seller has 5 rating. So when you reject the order, automatically your rating gets affected and this will automatically lead to your non-qualification of the bid. तो आपको बायर अप्रोच भी नहीं करेगा, डायरेक्ट बिड के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगा. अगर बिडिंग के थ्रू भी आप जाते हो तो देन देयर आर वेरी वेरी लो चांसेस फॉर यू टू विन द बिड. बिड पार्टिसिपेशन, जैसे मैंने कहा कि यू हैव क्रिएटेड योर लॉगिन, ओके, सो एवरीथिंग इज डन. नाउ कम्स बिड पार्टिसिपेशन. इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. वंस यू लॉग इन टू योर अकाउंट, देयर इज अ ऑप्शन बिड्स. अभी भी आप देख सकते हो बिड्स का ऑप्शन है. विदाउट लॉग इन ऑल्सो यू गेट टू सी ऑन जेम बिड्स. तो जैसे ही आप बिड्स पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली द कैटेगरी अंडर विच योर प्रोडक्ट इज लिस्टेड, सारे टेंडर्स आपको लिस्ट डाउन हो जाते हैं और उस टेंडर के सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसमें अवेलेबल रहते हैं. जो भी एलिजिबिलिटी जो डाला हुआ है बायर ने, उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स भी उसमें अवेलेबल रहते हैं. तो जो भी बिड करता है, एक चीज मैं सारी कंपनीज को, एमएसएमईज को बताना चाहूंगी कि बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे बिडिंग करवाए हैं कंपनीज को और मैंने देखा है कि कंपनीज क्यों नहीं जीत पाती. बहुत सी कंपनीज होती है, हम बहुत बिडिंग करते बट हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है. सी, बहुत जरूरी है कि पहले आप रिक्वायरमेंट समझो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर. If buyer has asked for something and you are not able to fulfill that, then don't go for such bids. Identifying the bid is very very important. That is the actual first stage which will lead to your 50% success. And then comes, how exactly you do the quotations and all. But 50% success depends upon the criteria which are mentioned by the buyer. And this is where I'll tell you, DG Market, why we have more companies coming to us for bid participation, because they do not have this experience, and we have this experience. We know we will, even if they come to us saying that we want to participate, we say no, you don't participate in this tender. We are sure you are not going to win this contract, or you will not even be close because you do not fit into the eligibility criteria. So ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है. So whenever, जैसे ही आप लॉग इन करते हो और आपको बिड दिखता है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू कीजिए एंड देन वहां पे एक बिड जहां पे लिखा हुआ है उसके वहां पे पार्टिसिपेट का ऑप्शन रहता है. वंस यू क्लिक ऑन दैट पार्टिसिपेट, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपके जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो तो सिस्टम थ्रू ऑटोमेटिकली डाले जाएंगे, बट जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे लास्ट 3 साल का बैलेंस शीट है, या तो फिर टर्नओवर का सर्टिफिकेट है, समथिंग लाइक दैट, या तो फिर पीओ ऑर्डर्स का कुछ इनवॉइसेस चाहिए,
तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, आपका प्राइस ऑफर करना है वहां पे। प्राइस ऑफर करने के बाद सबमिट डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड, सेव एंड एनक्रिप्ट। वंस यू सेव एंड एनक्रिप्ट एंड देन यू कैन सबमिट द बिड। जैसे ही बिड सबमिट होता है, ओके एक चीज मैंने लास्ट में लिखी हुई, यू कैन ऑल्सो विड्रॉ द बिड, री पार्टिसिपेट इन द बिड। तो आपने जो ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है बिड, उसको विड्रॉ कर सकते हो, आप वापस पार्टिसिपेट कर सकते हो प्राइस चेंज करके। ओके बट ये पॉसिबल है ओनली जब तक डेडलाइन जो है वो टेंडर का खत्म नहीं होता है। एक बार डेडलाइन खत्म हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ओके उसके बाद इवैल्यूएशन होता है, बायर इवैल्यूएट करता है सारे टेक्निकल फाइनेंशियल्स वगैरह, और अगर आपको ऑर्डर मिलता है, ओके यू हैव टू जनरेट अ इनवॉइस, वो भी ऑनलाइन होता है। जैसे बायर आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको एक लिंक आ जाता है जहां पे आपको इनवॉइस जनरेट करना है। उस लिंक पे क्लिक करके आपको बहुत बेसिक डिटेल्स रहती है उसमें, जैसे इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, मोड ऑफ डिस्पैच है, बैंक अकाउंट नंबर इज देयर, जीएसटी नंबर, एंड वट एवर इंफॉर्मेशन यू नीडेड टू बी एडेड लाइक एड्रेस इज देयर इन द इनवॉइस, and you just click on the preview, just see the preview of the invoice for the details which you have filled in the invoice, and generate the invoice. Once it is generated, it will reflect in the buyer's account automatically. So this is actually the process which goes in GEM. So right from beginning to registering your company, identifying the bids, bidding for the tender, winning the order, completing the order, and then raising the invoice and the payment, which comes automatically to your bank account, which is listed while registering in this. उसके बाद यहाँ पे और एक फीचर है सेलर डैशबोर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत जरूरी है ये जानना कि आपने इस साल में जेम पे क्या किया रजिस्ट्रेशन करके। तो यहाँ पे एक सेलर डैशबोर्ड आ जाता है जिसमें आपको पता चलता है कि आपको कितने ऑर्डर्स मिले इस साल में, आपके कितने ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने के लिए पेंडिंग है, कितने डिलीवरी के लिए पेंडिंग है, कितने प्रोडक्ट्स यू हैव, how many bids you have participated, because this is very important, because on the basis of that you will understand your activity in GEM and how exactly you have performed, how many bids you have participated, how many you have won and how many you have lost. अब ये इंफॉर्मेशन तो बेसिक है, बट आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है। से फॉर एग्जांपल यू हैव बिड फॉर 10 टेंडर्स इन अ ईयर बट यू हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन विनिंग एनी टेंडर। देयर मे बी मेनी क्राइटेरिया बट द मेजर क्राइटेरिया एज आई सेड इज द कॉस्ट। So you again get one bid analysis chart जहां पे ग्राफ्स है, पाई चार्ट रहता है, ग्राफ दिया हुआ है एंड स्टैट्स दिया हुआ रहता है, wherein you get to know that the L1 bidder who has won the contract, वो कौन से प्राइस में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो इससे आपको नेक्स्ट बिड के लिए हेल्प होता है कि आपको प्राइसिंग किस तरह से करनी है टेंडर के लिए। दूसरी चीज और एक प्रोविजन मैं इसमें बताती हूँ, बहुत अच्छी प्रोविजन गवर्नमेंट ने की है इन मिनिस्ट्रीज के लिए, मिनिस्ट्रीज एंड ऑल को जो किया बताया है। जैसे अगर आप सी GEM is open for everyone. It's not necessary that only MSMEs are going to participate. There will be big companies also participating. So there is a provision over here, like if the L1 bidder is non-MSME company, and if the L2 bidder is a MSME company, and if your price falls between L1 plus 15%, then it is mandatory for the ministry to call जितने भी, जैसे अगर 3 MSMEs है जिनका प्राइस जो है वो L1 बिडर के प्राइस से प्लस 15% के रेंज में आ रहा है, so they will invite all the 3 MSMEs and they will ask to fit into the L1 price. तो आपको कहा जाएगा कि अगर आप L1 प्राइस में सप्लाई करने को रेडी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं, बट कॉन्ट्रैक्ट में से 25% विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग दोज 3 MSMEs. सो 25% में से तीनों MSMEs को थोड़ा थोड़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो जाएगा एंड द रेस्ट विल बी अलॉटेड टू द L1 bidder. So this is also one of the provision which is there for the MSMEs in GEM, you know, which is very very important, because and this is mandatory. It's not that they just can neglect. No, they have to. If it falls under L1 plus 15%, then they have to call the bidders for the negotiation. Before I end my presentation, I will give you some examples. मैंने कुछ सिस्टम में से मेरे निकाले हैं और मेरे जो GEM पार्टनर्स हैं उन्होंने मुझे कुछ टेंडर्स बताए हैं. So you can see on my screen very small tenders. मैंने स्टैट्स भी डाला हुआ है कि एक सप्लाई ऑफ एम्बुलेंस का टेंडर है जिसमें EMD एग्जाम्प्ट है, टेंडर फी उसमें है ही नहीं, एप्लीकेबल नहीं है, एक्सपीरियंस एग्जाम नहीं है, MSME प्रेफरेंस नॉट एप्लीकेबल. सप्लाई ऑफ हैमर का एक टेंडर है जिसमें EMD एग्जाम्प्ट है, टेंडर फी एग्जाम्प्ट है, एक्सपीरियंस भी एग्जाम्प्ट है एंड MSME प्रेफरेंस भी दिया गया है. सप्लाई ऑफ एग्जीक्यूटिव टेबल्स,
AMD exempt है, टेंडर फी exempt है, एक्सपीरियंस exempt है, एंड MSME preference है. Supply of induction heater, supply of school sweaters. If you can see school sweaters, tea set. So this one is for railway actually. Central Railway का ये tender है. Supply of tea sets है. इसमें AMD exempt है, tender fee is exempt, experience exempt है, and MSME preference नहीं है इसमें. So you can see these are only few which I have listed. So even अगर ministry को एक pen भी purchase करना है ना, so they have to put forth the tender. Or if they are purchasing the pens value of more than 25,000, then they have to go with the L1 purchase. More than 5 lakh, then they will have to put out a tender. So these are some of the opportunities available in GEM for the MSMEs. And with this, I will end my presentation, and you can see on my screen, my email ID is there, DG Market India Private Limited. If you have any queries, if you want to have any help, because as I said, our focus is to help MSMEs. बड़ी कंपनीज को हमारे हेल्प की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस भी रहता है और उनके पास खुद की टीम रहती है. बट एमएसएमईज वो एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, और एमएसएमईज वो टीम बिल्ड नहीं कर पाती. एटलीस्ट इन द इनिशियल फेज, for first 1 year or 2 years, they need our help, and that is where we are helping the MSMEs to get into the government tendering platform. So by this, I will just end my presentation, and Sumer, I am done with it, and if we can just take some questions, that is good for. Thank you so much, ma'am, for that really insightful presentation. Everybody benefited a lot from it, I'm sure, and we have a lot of questions for you. So the first one is how to upload products if it is not there in the catalog. Yeah. So as I said during my presentation, I mentioned this thing कि अगर आपका प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं है तो आपको एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है, आपको टिकट रेज करना पड़ता है जेम में, that you want to add this product category into the gem because you are the person who will be supplying this product. But it takes a time because ये पूरा verify होता है, उसकी requirement, उसकी need देखी जाती है, and as I said, there is a team in place who takes this decision, and after that they add the category because gem full fledged नहीं है अभी भी, उसमें बहुत से प्रोडक्ट अभी भी नहीं है. So you have to raise a ticket. If you are not in a position to raise a ticket, if you don't know how to raise a ticket, you can just go to the help desk email ID of GEM, and you can just send an email mentioning that about your product. You can just send the details about your product, and you can just ask them to add the category. So that is the way you can get the products added. Right, ma'am. The next question we have is, please explain how to get authorization number from GEM. What type of authorization number? This question is from Mr. SM Kanakaraj. Can you please, sir, I request you to please speak up and clarify your doubt. What kind of authorization number are you seeking? Since he's not answering right now, I request him to please write in the chat box while we move on to the next question. The next question is, GEM is too stringent to get registered. There are so many verifications. Can we look forward to, do you think there is scope for some change anytime soon? To be very frank, in fact, I feel that there are not many verifications in GEM. The only thing is we just need to know the process. Because vendor assessment earlier it was not there, so it was brought in place in 3.0 version and 4.0. So authorization आएगी इसमें for sure आएगी, जैसे मैंने आपको कहा कि 5.0 वर्जन आएगा, बट रजिस्ट्रेशन उतना डिफिकल्ट नहीं है. अगर बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी है, then you can easily go for the registration. And as I said, if you need any help, we are always there. You can email me and we can help you with your registration process. But जैसे मैंने आपको कहा कि you have to be very careful while registering. But if you make a mistake, like अगर आपका for example MSME certificate जो है वो से XYZ ग्रुप के नाम से है, एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका जो सिस्टर कंसर्न का नाम डाल दिया, देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज नेम चेंज करने का, ओके, सो अर्लियर इट वाज लाइक यू कैन चेंज द नेम ऑफ द कंपनी मेनी टाइम्स, बट इसमें क्या होने लगा कि फ्रॉड होने लगा.
लोग क्या करते थे कि एक कंपनी अगर ब्लैकलिस्ट हो गया तो दूसरे कंपनी के नाम से अपना अकाउंट बना देते थे. So now even they have limited that. You can change the name of the company only once in 6 months and only twice in a year, and after that you cannot do that. So your account gets blocked. So these are basically restrictions are there because government don't want that any manipulation takes place in the procurement. Right. Ma'am, going back to the previous question on the authorization number, Mr. Kanakaraj says that in the registration process, the system is asking authorization number for reseller. It seems the reseller needs to get authorization number from the OEM. Yes. So, ma'am, how to get that? What is the process of getting that? No, that doesn't happen through the GEM portal. That is basically authorization number is basically that you have to get it through the OEM. So it doesn't happen through the GEM portal. Right, ma'am. There is no process in GEM as such. Right. Moving on to the next question. If the government does not pay within specified timelines, what is the process? There is a process like you can raise the concern that your payments have not been cleared. And जैसे मैंने कहा कि अगर within 45 days नहीं होता है तो कुछ penalty clause है government को, and then they'll have to pay that penalty also. So you can always, as I said, there is always a option for you to raise the concern through GEM portal itself that your payments have not been cleared. एंड नॉर्मली आप देखो कि अभी बहुत ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आया है. नो डाउट, सी इट इज गोइंग टू टेक टाइम बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अर्लियर प्रोसेस वाज still having a lot of loopholes wherein lot of manipulation was happening, and these people, they are improvising on that. So you have to raise a concern through a GEM portal, and it is 100% taken care by. So the next two questions, ma'am, I've clubbed them together. Does the GEM portal charge any registration fee? Because this gentleman was asked for rupees 1,500 to deposit. Second part, on listings, is the price inclusive of taxes and shipping charges or exclusive of it? No, on GEM there is no registration charges. जैसे मैंने आपको कहा कि GEM में registration fees नहीं है. It's only for vendor assessment. If you want to have, you are a OEM and you want to do a vendor assessment, then there are some charges because they use a few agencies for that work. So that agency payments, that is 13,628 something, that you needed to be. Otherwise, GEM registration is absolutely free. And what about the other question? On listings, is the price inclusive of taxes and shipping charges or exclusive of it? It is exclusive of it. Right. The next one, ma'am, raising the invoice along with e-way bill if value is below 50,000 rupees should be at the time of dispatch of material or on the very same day when we get the order. To be very frank, I have not come across this scenario, so I would not be able to comment on this. But Mr. Rohit Kapoor, okay, so if you can just note down my email ID, I'll just put it on my, because I would not comment because I have not come across this scenario. So I would just request you send your details on this email ID. And as I said, I have my GEM team working with me in DG Market. So I will get back to you with the answer for this. Right, ma'am. And the last question is for MSMEs, which is only services as of now, will it take a month for the registration to complete? No, they would not need a 1 month for completion because vendor assessment process उसमें नहीं होता है. But जैसे मैंने कहा कि services के लिए थोड़ा scope भी कम है. So I would suggest before you go for the registration, you just check out what opportunities are available. जैसे मैंने कहा कि login के बिना भी आप check कर सकते हो GEM के website पे कि कौन से tenders available है. It's very simple. There is a search bar available. You can put your product and you can search if the product is available for you, and then you can go for the registration. And for you, it won't take much of a time because vendor assessment process will not be there. Right, ma'am. Thank you so much. That was all the questions we had from you today. Thank you so much for this step-by-step demo almost that you gave through. I don't think it can be clearer than this. And I'm sure our participants also found this extremely useful.
So I would like to thank you for coming here today and giving us this insightful information. I would also like to thank our participants for taking out time this evening to be here with us today and being so interactive. And I would encourage all of you to please give us some feedback. हमने एक link छोड़ी है आपके chat box में. So please go and tell us what you think of this session. Please let us know what more you would like to see from our end, because as you have been seeing that Power to SME, through these webinars, it's all about helping SMEs and serving MSME needs better to the best of our capacity. So we encourage some feedback from you. I have also given the link for the Sahaita program that was spoken about earlier at the beginning of this session. And we look forward to having all of you here with us next week for our next webinar. And with this, I would like to conclude this session and like to wish you all a very, very happy Diwali in advance and the best of this festive season. Thank you so much to everybody for being here today. Good evening. Thank you, all of you. Thank you.